اور انہوں نے ایک بل جو تھا وہ انٹروڈیوس کروا رکھا تھا سینٹ میں، جو کہ کمیٹی کے سپرد تھا، اور اس بل پہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ میں نے بطور وزیر قانون اس کی سپورٹ کے حوالے سے ایک نوٹ بھی وہاں پہ کمیٹی میں دیا تھا۔ وہ بل کیونکہ آلریڈی پینڈنگ ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں، تو وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ کابینہ نے آج مجھے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ آج کا یہ بل جب سینٹ آف پاکستان میں پیش ہونے کے بعد کمیٹی کے سپرد کیا جائے تو اس بل کو بھی کمیٹی میں بحث کی جائے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ دیگر جو ہمارے حلیف جماعتیں ہیں ان کو کنونس کریں کہ اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہو اور اسے پاس کیا جائے۔ ریسنٹلی پنجاب اسمبلی سے بھی ایک قرارداد ہے، وہ بھی ڈسکس ہوگی۔ ہماری ایک اور حلیف جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر منظور کاکڑ صاحب اور ان کے صدر وفاقی وزیر جناب خالد مگسی صاحب نے جب ملاقات کی وزیر اعظم سے، تو انہوں نے ایک اور بل کی طرف توجہ دلائی جو کہ بلوچستان کی صرف صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافے کے متعلق ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جغرافیائی جو ہے سارا نقشہ وہ بالکل فرق ہے، اور حلقے جو ہیں وہ 600 700 کلومیٹر پہ محیط ہیں، تو صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی حد تک اس میں کچھ اضافہ تجویز کیا جائے۔ تو یہ دونوں بل کیونکہ آلریڈی لا اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس پینڈنگ ہے، تو ان کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی، اور جو متحدہ کے بل کے بارے میں جو میں نے کہا ہے وہ کابینہ میں آج ڈسکس ہوا ہے۔ یہ سارے اس کے خد و خال تھے۔ اب میں نے جا کے وہاں پہ قومی نصاب کی تیاری، پاپولیشن کا محکمہ وفاق کے سپرد کرنا، اوورسیز کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دینا، یہ وہ تمام معاملات تھے جو کہ بات کی جا رہی تھی۔ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن؟ جی بالکل، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور حکومتی جماعت کے حلیف جماعت کے سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج سے کچھ روز پہلے ایک ٹویٹ کے ذریعے اب قوم کو اس سے آگاہ کیا تھا۔ جو ہماری ان سے گفت و شنید ہوتی رہی، وہ سارے معاملات وہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں لے کے گئے، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ابھی جن چیزوں پہ ہمارا اتفاق رائے ہے اور ہم ووٹ کرنے کو تیار ہیں، آپ وہی جو سبجیکٹس ہیں وہ لے کے آئیں پارلیمان میں، تاکہ ہم سارے اتفاق رائے کے ساتھ یہ جو ضروری چیزیں ہیں انہیں ابھی کر لیں۔ وہ معاملات جو ہیں ان پہ بعد کی جو گفتگو یا بحث ہے وہ اس کو فی الحال پینڈ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، پاکستان بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ سیاسی رواداری ہے، سیاسی ہم آہنگی ہے اور سیاسی استحکام ہے۔ مئی کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مملکت پاکستان کو جس عزت اور تکریم سے نوازا، اس پہ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ان ایام میں پوری قوم نے یک جان ہو کر پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی اور اپنا کردار ادا کیا، پاکستان کے معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے بھی اسی اسپرٹ کی ضرورت ہے۔ ہم یہ بل پیش کرنے کے بعد اپوزیشن اور جو ہمارے حلیف جماعتیں ہیں ان کے لیے یہ اوپن فار ڈسکشن ہوگا۔ پارلیمانی پریکٹسز کا آپ کو علم ہے کہ ایک بحث ہوتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو کہ ذرا مختصر لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے، اور پھر فلور آف ہاؤس کے اوپر بھی یہ ڈیبیٹ اوپن ہوگی۔ پارلیمان 2/3 اکثریت کے ساتھ جو بل پاس کرے گی وہ آئین کا حصہ بنے گا۔ بہت شکریہ۔ رکھی جائیں گی، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ 2/3 اکثریت سے منظور ہوں گی تو آئین کا حصہ بنے گی۔ ایک بات کی میں پھر وضاحت بھی کرتا چلوں کہ ہماری ایک حلیف جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت آئین کے آرٹیکل 140A میں ترمیم کے لیے وزیر اعظم سے اور پاکستان مسلم لیگ نون سے یعنی حکومت سے رابطہ کیا تھا، اور انہوں نے ایک بل جو تھا وہ انٹروڈیوس کروا رکھا تھا سینٹ میں، جو کہ کمیٹی کے سپرد تھا، اور اس بل پہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ
میں نے بطور وزیر قانون उसकी सपोर्ट के हवाले से एक नोट भी वहाँ पे कमेटी में दिया था। वो बिल क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग है स्टैंडिंग कमेटी में, तो वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पे काबीना ने आज मुझे ये भी हिदायत की है कि आज का ये बिल जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश होने के बाद कमेटी के सुपुर्द किया जाए तो उस बिल को भी कमेटी में बहस की जाए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि दीगर जो हमारे हलीफ जमातें हैं उनको कन्विंस करें कि इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो और इसे पास किया जाए। रिसेंटली पंजाब असम्बली से भी एक करारदाद है, वो भी डिस्कस होगी। हमारी एक और हलीफ जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर सेनेटर मंजूर काकड़ साहब और उनके सदर वफाकी वज़ीर जनाब खालिद मगसी साहब ने जब मुलाकात की वज़ीर आज़म से, तो उन्होंने एक और बिल की तरफ तवज्जो दिलाई जो कि बलूचिस्तान की सिर्फ सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफे के मुतल्लिक है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारा जोग्राफियाई जो है सारा नक्शा वो बिल्कुल फ़र्क है और हल्के जो हैं वो 600, 700, 100 किलोमीटर पे मुहित हैं। तो सूबाई असम्बली के हल्कों की हद तक उसमें कुछ इजाफा तजवीज़ किया जाए। तो ये दोनों बिल क्योंकि ऑलरेडी लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी के पास पेंडिंग है, तो उनके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। और जो मुत्तहिदा के बिल के बारे में जो मैंने कहा है वो काबीना में आज डिस्कस हुआ है। ये सारे इसके खद्दो खाल थे। अब मैंने जाके वहाँ पे कौमी निसाब की तैयारी पॉपुलेशन का महकमा वफाक के सुपुर्द करना, ओवरसीज़ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त देना, ये वो तमाम मामला थे जो कि बात की जा रही थी। इसके ऊपर कोई डिस्कशन इसके जी बिल्कुल मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और हुकूमती जमात के हलीफ जमात के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज से कुछ रोज़ पहले एक ट्वीट के ज़रिए अब कौम को इससे आगाह किया था। जो हमारी उनसे गुफ्तो शनीद होती रही वो सारे मामलात वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेके गए और उन्होंने हमें ये कहा कि अभी जिन चीज़ों पे हमारा इत्तफाक़ राय है और हम वोट करने को तैयार हैं, आप वही जो सब्जेक्ट्स हैं वो लेके आएँ पार्लियामान में, ताकि हम सारे इत्तफाक़ राय के साथ ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं इन्हें अभी कर लें। वो मामलात जो हैं उन पे बाद की जो गुफ्तगू या बहस है वो उसको फ़िलहाल पेंड किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रहा है और मैं समझता हूँ कि आज जो मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो सियासी रवादारी है, सियासी हम आहंगी है और सियासी इस्तेहकाम है। मई के महीने में अल्लाह ताला ने मुमलकत के पाकिस्तान को जिस इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा, उस पे हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह उन अय्याम में पूरी कौम ने यकजान होकर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की और अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान के मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए भी इसी स्पिरिट की ज़रूरत है। हम ये बिल पेश करने के बाद अपोजिशन और जो हमारे हलीफ जमातें हैं उनके लिए ये ओपन फॉर डिस्कशन होगा। पार्लिमानी प्रैक्टिसेस का आपको इल्म है कि एक बहस होती है स्टैंडिंग कमेटी में जो कि ज़रा मुख्तसर लोगों पे मुश्तमिल होती है और फिर फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर भी ये डिबेट ओपन होगी। पार्लिमान 2/3 अक्सरियत के साथ जो बिल पास करेगी वो आइन का हिस्सा बनेगा। बहुत शुक्रिया। रखी जाएंगी और आप सबको मालूम है कि आइनी तरमीम जो हैं वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर होंगी तो आइन का हिस्सा बनेगी। एक बात की मैं फिर वजाहत भी करता चलूँ कि हमारी एक हलीफ जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 26वीं आइनी तरमीम के वक्त आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम के लिए वज़ीर आज़म से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से यानी हुकूमत से रब्ता किया था और उन्होंने एक बिल जो था वो इंट्रोड्यूस करवा रखा था सेनेट में, जो कि कमेटी के सुपुर्द था। और उस बिल पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत पे मैंने बतौर वज़ीर कानून उसकी सपोर्ट के हवाले से एक नोट भी वहाँ पे कमेटी में दिया था। वो बिल क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग है स्टैंडिंग कमेटी में, तो वज़ीर आज़म साहब की हदायत पे काबीना ने आज मुझे ये भी हदायत की है
कि आज का ये बिल जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश होने के बाद कमेटी के सुपुर्द किया जाए तो उस बिल को भी कमेटी में बहस की जाए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि दीगर जो हमारे हलीफ जमातें हैं उनको कन्विंस करें कि इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो और इसे पास किया जाए। रिसेंटली पंजाब असम्बली से भी एक करारदाद है, वो भी डिस्कस होगी। हमारी एक और हलीफ जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर सेनेटर मंजूर काकड़ साहब और उनके सदर वफाकी वज़ीर जनाब खालिद मगसी साहब ने जब मुलाकात की वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने एक और बिल की तरफ तवज्जो दिलाई जो कि बलूचिस्तान की सिर्फ सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफे के मुतल्लिक है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारा जोग्राफियाई जो है सारा नक्शा वो बिल्कुल फ़र्क है और हल्के जो हैं वो 600, 700, 100 किलोमीटर पे मुहित हैं। तो सूबाई असम्बली के हलकों की हद तक उसमें कुछ इजाफा तजवीज़ किया जाए। तो ये दोनों बिल क्योंकि ऑलरेडी लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी के पास पेंडिंग है तो उनके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। और जो मुत्तहिदा के बिल के बारे में जो मैंने कहा है वो काबीना में आज डिस्कस हुआ है। ये सारे इसके खद्दो खाल थे। अब मैंने जाके वहाँ पे कौमी निसाब की तैयारी पॉपुलेशन का महकमा वफाक के सुपुर्द करना, ओवरसीज़ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त देना, ये वो तमाम मामला थे जो कि बात की जा रही थी। इसके ऊपर कोई डिस्कशन इसके जी बिल्कुल मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और हुकूमती जमात के हलीफ जमात के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज से कुछ रोज़ पहले एक ट्वीट के ज़रिए अब कौम को इससे आगाह किया था। जो हमारी उनसे गुफ्तो शनीद होती रही वो सारे मामलात वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेके गए और उन्होंने हमें ये कहा कि अभी जिन चीज़ों पे हमारा इत्तफाक़ राय है और हम वोट करने को तैयार हैं, आप वही जो सब्जेक्ट्स हैं वो लेके आएँ पार्लियामान में ताकि हम सारे इत्तफाक़ राय के साथ ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं इन्हें अभी कर लें। वो मामलात जो हैं उन पे बाद की जो गुफ्तगू या बहस है वो उसको फ़िलहाल पेंड किया जा रहा है। देखिए पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रहा है और मैं समझता हूँ कि आज जो मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो सियासी रवादारी है, सियासी हम आहंगी है और सियासी इस्तेहकाम है। मई के महीने में अल्लाह ताला ने मुमलकत पाकिस्तान को जिस इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा उस पे हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह उन अय्याम में पूरी कौम ने यकजान होकर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की और अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान के मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए भी इसी स्पिरिट की ज़रूरत है। हम ये बिल पेश करने के बाद अपोजिशन और जो हमारे हलीफ जमातें हैं उनके लिए ये ओपन फॉर डिस्कशन होगा। पार्लिमानी प्रैक्टिसेस का आपको इल्म है कि एक बहस होती है स्टैंडिंग कमेटी में जो कि ज़रा मुख्तसर लोगों पे मुश्तमिल होती है और फिर फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर भी ये डिबेट ओपन होगी। पार्लिमान 2/3 अक्सरियत के साथ जो बिल पास करेगी वो आइन का हिस्सा बनेगा। बहुत शुक्रिया। रखी जाएंगी और आप सबको मालूम है कि आइनी तरामीम जो हैं वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर होंगी तो आइन का हिस्सा बनेगी। एक बात की मैं फिर वजाहत भी करता चलूँ कि हमारी एक हलीफ जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 26वीं आइनी तरमीम के वक्त आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम के लिए वज़ीर आज़म से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से यानी हुकूमत से रब्ता किया था और उन्होंने एक बिल जो था वो इंट्रोड्यूस करवा रखा था सेनेट में जो कि कमेटी के सुपुर्द था। और उस बिल पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत पे मैंने बतौर वज़ीर कानून उसकी सपोर्ट के हवाले से एक नोट भी वहाँ पे कमेटी में दिया था। वो बिल क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग है स्टैंडिंग कमेटी में तो वज़ीर आज़म साहब की हदायत पे काबीना ने आज मुझे ये भी हदायत की है कि आज का ये बिल जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश होने के बाद कमेटी के सुपुर्द किया जाए तो उस बिल को भी कमेटी में बहस की जाए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि दीगर जो हमारे हलीफ जमातें हैं
ان کو کنونس کریں کہ اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہو اور اسے پاس کیا جائے. ریسنٹلی پنجاب اسمبلی سے بھی ایک قرارداد ہے، وہ بھی ڈسکس ہوگی. ہماری ایک اور حلیف جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر منظور کاکڑ صاحب اور ان کے صدر وفاقی وزیر جناب خالد مگسی صاحب نے جب ملاقات کی وزیر اعظم سے، تو انہوں نے ایک اور بل کی طرف توجہ دلائی جو کہ بلوچستان کی صرف صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافے کے متعلق ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جغرافیائی جو ہے سارا نقشہ وہ بالکل فرق ہے اور حلقے جو ہیں وہ 600 700 کلومیٹر پہ محیط ہیں. تو صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی حد تک اس میں کچھ اضافہ تجویز کیا جائے. تو یہ دونوں بل کیونکہ آلریڈی لا اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس پینڈنگ ہے، تو ان کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی. اور جو متحدہ کے بل کے بارے میں جو میں نے کہا ہے وہ کابینہ میں آج ڈسکس ہوا ہے. یہ سارے اس کے خد و خال تھے. اب میں نے جا کے وہاں پہ قومی نصاب کی تیاری پاپولیشن کا محکمہ وفاق کے سپرد کرنا، اوورسیز کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دینا، یہ وہ تمام معاملات تھے جو کہ بات کی جا رہی تھی. اس کے اوپر کوئی ڈسکشن؟ جی بالکل، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. یہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور حکومتی جماعت کے حلیف جماعت کے سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج سے کچھ روز پہلے ایک ٹویٹ کے ذریعے اب قوم کو اس سے آگاہ کیا تھا. جو ہماری ان سے گفت و شنید ہوتی رہی وہ سارے معاملات وہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں لے کے گئے اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ابھی جن چیزوں پہ ہمارا اتفاق رائے ہے اور ہم ووٹ کرنے کو تیار ہیں، آپ وہی جو سبجیکٹس ہیں وہ لے کے آئیں پارلیمان میں، تاکہ ہم سارے اتفاق رائے کے ساتھ یہ جو ضروری چیزیں ہیں انہیں ابھی کر لیں. وہ معاملات جو ہیں ان پہ بعد کی جو گفتگو یا بحث ہے وہ اس کو فی الحال پینڈ کیا جا رہا ہے. دیکھیں، پاکستان بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ سیاسی رواداری ہے، سیاسی ہم آہنگی ہے اور سیاسی استحکام ہے. مئی کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مملکت پاکستان کو جس عزت اور تکریم سے نوازا، اس پہ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ان ایام میں پوری قوم نے یک جان ہو کر پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی اور اپنا کردار ادا کیا، پاکستان کے معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے بھی اسی اسپرٹ کی ضرورت ہے. ہم یہ بل پیش کرنے کے بعد اپوزیشن اور جو ہمارے حلیف جماعتیں ہیں ان کے لیے یہ اوپن فار ڈسکشن ہوگا. پارلیمانی پریکٹسز کا آپ کو علم ہے کہ ایک بحث ہوتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو کہ ذرا مختصر لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے، اور پھر فلور آف ہاؤس کے اوپر بھی یہ ڈیبیٹ اوپن ہوگی. پارلیمان 2/3 اکثریت کے ساتھ جو بل پاس کرے گی وہ آئین کا حصہ بنے گا. بہت شکریہ. رکھی جائیں گی اور آپ سب کو معلوم ہے کہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ 2/3 اکثریت سے منظور ہوں گی تو آئین کا حصہ بنے گی. ایک بات کی میں پھر وضاحت بھی کرتا چلوں کہ ہماری ایک حلیف جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت آئین کے آرٹیکل 140A میں ترمیم کے لیے وزیر اعظم سے اور پاکستان مسلم لیگ نون سے یعنی حکومت سے رابطہ کیا تھا، اور انہوں نے ایک بل جو تھا وہ انٹروڈیوس کروا رکھا تھا سینٹ میں جو کہ کمیٹی کے سپرد تھا. اور اس بل پہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ میں نے بطور وزیر قانون اس کی سپورٹ کے حوالے سے ایک نوٹ بھی وہاں پہ کمیٹی میں دیا تھا. وہ بل کیونکہ آلریڈی پینڈنگ ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں، تو وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ کابینہ نے آج مجھے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ آج کا یہ بل جب سینٹ آف پاکستان میں پیش ہونے کے بعد کمیٹی کے سپرد کیا جائے تو اس بل کو بھی کمیٹی میں بحث کی جائے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ دیگر جو ہمارے حلیف جماعتیں ہیں ان کو کنونس کریں کہ اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہو اور اسے پاس کیا جائے. ریسنٹلی پنجاب اسمبلی سے بھی ایک قرارداد ہے، وہ بھی ڈسکس ہوگی. ہماری ایک اور حلیف جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر
सैनेटर मंजूर काकड़ साहब और उनके सदर वफाकी वज़ीर जनाब खालिद मगसी साहब ने जब मुलाकात की वज़ीर आज़म से, तो उन्होंने एक और बिल की तरफ तवज्जो दिलाई जो कि बलूचिस्तान की सिर्फ सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफे के मुतल्लिक़ है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारा जोग्राफियाई जो है सारा नक्शा वो बिल्कुल फ़र्क है और हल्के जो हैं वो 600, 700, 100 किलोमीटर पे मुहित हैं। तो सूबाई असम्बली के हलकों की हद तक उसमें कुछ इजाफा तजवीज़ किया जाए। तो ये दोनों बिल क्योंकि ऑलरेडी लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी के पास पेंडिंग है, तो उनके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। और जो मुत्तहिदा के बिल के बारे में जो मैंने कहा है वो काबीना में आज डिस्कस हुआ है। ये सारे इसके खद्दो खाल थे। अब मैंने जाके वहाँ पे कौमी निसाब की तैयारी पॉपुलेशन का महकमा वफाक के सुपुर्द करना, ओवरसीज़ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त देना, ये वो तमाम मामला थे जो कि बात की जा रही थी। इसके ऊपर कोई डिस्कशन? जी बिल्कुल, मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और हुकूमती जमात के हलीफ जमात के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज से कुछ रोज़ पहले एक ट्वीट के ज़रिए अब कौम को इससे आगाह किया था। जो हमारी उनसे गुफ्तो शनीद होती रही, वो सारे मामलात वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेके गए और उन्होंने हमें ये कहा कि अभी जिन चीज़ों पे हमारा इत्तफाक़ राय है और हम वोट करने को तैयार हैं, आप वही जो सब्जेक्ट्स हैं वो लेके आएँ पार्लियामान में, ताकि हम सारे इत्तफाक़ राय के साथ ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं इन्हें अभी कर लें। वो मामलात जो हैं उन पे बाद की जो गुफ्तगू या बहस है वो उसको फ़िलहाल पेंड किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रहा है और मैं समझता हूँ कि आज जो मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो सियासी रवादारी है, सियासी हम आहंगी है और सियासी इस्तेहकाम है। मई के महीने में अल्लाह ताला ने मुमलकत के पाकिस्तान को जिस इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा, उस पे हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह उन अय्याम में पूरी कौम ने यकजान होकर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की और अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान के मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए भी इसी स्पिरिट की ज़रूरत है। हम ये बिल पेश करने के बाद अपोजिशन और जो हमारे हलीफ जमातें हैं उनके लिए ये ओपन फॉर डिस्कशन होगा। पार्लिमानी प्रैक्टिसेस का आपको इल्म है कि एक बहस होती है स्टैंडिंग कमेटी में जो कि ज़रा मुख्तसर लोगों पे मुश्तमिल होती है और फिर फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर भी ये डिबेट ओपन होगी। पार्लिमान 2/3 अक्सरियत के साथ जो बिल पास करेगी वो आइन का हिस्सा बनेगा। बहुत शुक्रिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा भी तैलीम कर रहे हैं सर, रखी जाएंगी और आप सबको मालूम है कि आइनी तरामीम जो हैं वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर होंगी तो आइन का हिस्सा बनेगी। एक बात की मैं फिर वजाहत भी करता चलूँ कि हमारी एक हलीफ जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 26वीं आइनी तरमीम के वक्त आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम के लिए वज़ीर आज़म से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से यानी हुकूमत से रब्ता किया था और उन्होंने एक बिल जो था वो इंट्रोड्यूस करवा रखा था सेनेट में, जो कि कमेटी के सुपुर्द था। और उस बिल पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत पे मैंने बतौर वज़ीर कानून उसकी सपोर्ट के हवाले से एक नोट भी वहाँ पे कमेटी में दिया था। वो बिल क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग है स्टैंडिंग कमेटी में, तो वज़ीर आज़म साहब की हदायत पे काबीना ने आज मुझे ये भी हदायत की है कि आज का ये बिल जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश होने के बाद कमेटी के सुपुर्द किया जाए तो उस बिल को भी कमेटी में बहस की जाए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि दीगर जो हमारे हलीफ जमातें हैं उनको कन्विंस करें कि इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो और इसे पास किया जाए। रिसेंटली पंजाब असम्बली से भी एक करारदाद है वो भी डिस्कस होगी। हमारी एक और हलीफ जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैनेटर मंजूर काकड़ साहब और उनके सदर वफाकी वज़ीर जनाब खालिद मगसी साहब ने जब मुलाकात की वज़ीर आज़म से,
तो उन्होंने एक और में जाके वहाँ पे कौमी निसाब की तैयारी पॉपुलेशन का महकमा वफाक के सुपुर्द करना, ओवरसीज़ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त देना, ये वो तमाम मामला थे जो कि बात की जा रही थी। इसके ऊपर कोई डिस्कशन? जी बिल्कुल, मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और हुकूमती जमात के हलीफ जमात के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज से कुछ रोज़ पहले एक ट्वीट के ज़रिए अब कौम को इससे आगाह किया था। जो हमारी उनसे गुफ्तो शनीद होती रही, वो सारे मामलात वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेके गए और उन्होंने हमें ये कहा कि अभी जिन चीज़ों पे हमारा इत्तफाक़ राय है और हम वोट करने को तैयार हैं, आप वही जो सब्जेक्ट्स हैं वो लेके आएँ पार्लियामान में, ताकि हम सारे इत्तफाक़ राय के साथ ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं इन्हें अभी कर लें। वो मामलात जो हैं उन पे बाद की जो गुफ्तगू या बहस है वो उसको फ़िलहाल पेंड किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रहा है और मैं समझता हूँ कि आज जो मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो सियासी रवादारी है, सियासी हम आहंगी है और सियासी इस्तेहकाम है। मई के महीने में अल्लाह ताला ने मुमलकत पाकिस्तान को जिस इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा, उस पे हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह उन अय्याम में पूरी कौम ने यकजान होकर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की और अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान के मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए भी इसी स्पिरिट की ज़रूरत है। हम ये बिल पेश करने के बाद अपोजिशन और जो हमारे हलीफ जमातें हैं उनके लिए ये ओपन फॉर डिस्कशन होगा। पार्लिमानी प्रैक्टिसेस का आपको इल्म है कि एक बहस होती है स्टैंडिंग कमेटी में जो कि ज़रा मुख्तसर लोगों पे मुश्तमिल होती है और फिर फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर भी ये डिबेट ओपन होगी। पार्लिमान 2/3 अक्सरियत के साथ जो बिल पास करेगी वो आइन का हिस्सा बनेगा। बहुत शुक्रिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा भी तैलीम कर रहे हैं सर, रखी जाएंगी और आप सबको मालूम है कि आइनी तरामीम जो हैं वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर होंगी तो आइन का हिस्सा बनेगी। एक बात की मैं फिर वजाहत भी करता चलूँ कि हमारी एक हलीफ जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 26वीं आइनी तरमीम के वक्त आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम के लिए वज़ीर आज़म से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से यानी हुकूमत से रब्ता किया था और उन्होंने एक बिल जो था वो इंट्रोड्यूस करवा रखा था सेनेट में, जो कि कमेटी के सुपुर्द था और उस बिल पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत पे मैंने बतौर वज़ीर कानून उसकी सपोर्ट के हवाले से एक नोट भी वहाँ पे कमेटी में दिया था। वो बिल क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग है स्टैंडिंग कमेटी में, तो वज़ीर आज़म साहब की हदायत पे काबीना ने आज मुझे ये भी हदायत की है कि आज का ये बिल जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश होने के बाद कमेटी के सुपुर्द किया जाए तो उस बिल को भी कमेटी में बहस की जाए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि दीगर जो हमारे हलीफ जमातें हैं उनको कन्विंस करें कि इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो और इसे पास किया जाए। रिसेंटली पंजाब असम्बली से भी एक करारदाद है वो भी डिस्कस होगी। हमारी एक और हलीफ जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर सेनेटर मंजूर काकड़ साहब और उनके सदर वफाकी वज़ीर जनाब खालिद मगसी साहब ने जब मुलाकात की वज़ीर आज़म से तो उन्होंने एक और बिल की तरफ तवज्जो दिलाई जो कि बलूचिस्तान की सिर्फ सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफे के मुतल्लिक है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारा जोग्राफियाई जो है सारा नक्शा वो बिल्कुल फ़र्क है और हल्के जो हैं वो 600, 700, 100 किलोमीटर पे मुहित हैं। तो सूबाई असम्बली के हल्कों की हद तक उसमें कुछ इजाफा तजवीज़ किया जाए। तो ये दोनों बिल क्योंकि ऑलरेडी लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी के पास पेंडिंग है तो उनके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। और जो मुत्तहिदा के बिल के बारे में जो मैंने कहा है वो काबीना में आज डिस्कस हुआ है
ये सारे इसके खद्दोखाल थे। अब मैंने जाके वहाँ पे कौमी निसाब की तैयारी पॉपुलेशन का महकमा वफा के सुपुर्द करना, ओवरसीज को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त देना, ये वो तमाम मामला थे जो कि बात की जा रही थी। इसके ऊपर कोई डिस्कशन? इसके जी बिल्कुल, मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और हुकूमती जमात के हलीफ जमात के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज से कुछ रोज़ पहले एक ट्वीट के ज़रिए अब कौम को इससे आगाह किया था। जो हमारी उनसे गुफ्तो शनीद होती रही, वो सारे मामलात वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेके गए और उन्होंने हमें ये कहा कि अभी जिन चीज़ों पे हमारा इत्तफाक़ राय है और हम वोट करने को तैयार हैं, आप वही जो सब्जेक्ट्स हैं वो लेके आएँ पार्लियामान में, ताकि हम सारे इत्तफाक़ राय के साथ ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं इन्हें अभी कर लें। वो मामलात जो हैं उन पे बाद की जो गुफ्तगू या बहस है वो उसको फ़िलहाल पेंड किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रहा है और मैं समझता हूँ कि आज जो मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो सियासी रवादारी है, सियासी हम आहंगी है और सियासी इस्तेहकाम है। मई के महीने में अल्लाह ताला ने मुमलकत पाकिस्तान को जिस इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा, उस पे हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह उन अय्याम में पूरी कौम ने यकजान होकर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की और अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान के मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए भी इसी स्पिरिट की ज़रूरत है। हम ये बिल पेश करने के बाद अपोजिशन और जो हमारे हलीफ जमातें हैं उनके लिए ये ओपन फॉर डिस्कशन होगा। पार्लिमानी प्रैक्टिसेस का आपको इल्म है कि एक बहस होती है स्टैंडिंग कमेटी में जो कि ज़रा मुख्तसर लोगों पे मुश्तमिल होती है और फिर फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर भी ये डिबेट ओपन होगी। पार्लिमान 2/3 अक्सरियत के साथ जो बिल पास करेगी वो आइन का हिस्सा बनेगा। बहुत शुक्रिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा भी तैलीम कर रहे हैं सर, रखी जाएंगी और आप सबको मालूम है कि आइनी तरामीम जो हैं वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर होंगी तो आइन का हिस्सा बनेगी। एक बात की मैं फिर वजाहत भी करता चलूँ कि हमारी एक हलीफ जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 26वीं आइनी तरमीम के वक्त आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम के लिए वज़ीर आज़म से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से यानी हुकूमत से रब्ता किया था और उन्होंने एक बिल जो था वो इंट्रोड्यूस करवा रखा था सेनेट में, जो कि कमेटी के सुपुर्द था। और उस बिल पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत पे मैंने बतौर वज़ीर कानून उसकी सपोर्ट के हवाले से एक नोट भी वहाँ पे कमेटी में दिया था। वो बिल क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग है स्टैंडिंग कमेटी में, तो वज़ीर आज़म साहब की हदायत पे काबीना ने आज मुझे ये भी हदायत की है कि आज का ये बिल जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश होने के बाद कमेटी के सुपुर्द किया जाए तो उस बिल को भी कमेटी में बहस की जाए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि दीगर जो हमारे हलीफ जमातें हैं उनको कन्विंस करें कि इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो और इसे पास किया जाए। रिसेंटली पंजाब असम्बली से भी एक करारदाद है, वो भी डिस्कस होगी। हमारी एक और हलीफ जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर सेनेटर मंजूर काकड़ साहब और उनके सदर वफाकी वज़ीर जनाब खालिद मगसी साहब ने जब मुलाकात की वज़ीर आज़म से, तो उन्होंने एक और बिल की तरफ तवज्जो दिलाई जो कि बलूचिस्तान की सिर्फ सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफे के मुतल्लिक़ है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारा जोग्राफियाई जो है सारा नक्शा वो बिल्कुल फ़र्क है और हल्के जो हैं वो 600, 700, 100 किलोमीटर पे मुहित हैं। तो सूबाई असम्बली के हल्कों की हद तक उसमें कुछ इजाफा तजवीज़ किया जाए। तो ये दोनों बिल क्योंकि ऑलरेडी लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी के पास पेंडिंग है तो उनके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। और जो मुत्तहिदा के बिल के बारे में जो मैंने कहा है वो काबीना में आज डिस्कस हुआ है
ये सारे इसके खद्दो खाल थे। अब मैंने जाके वहाँ पे कौमी निसाब की तैयारी पॉपुलेशन का महकमा वफाक के सुपुर्द करना, ओवरसीज को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त देना, ये वो तमाम मामला थे जो कि बात की जा रही थी। इसके ऊपर कोई डिस्कशन? जी बिल्कुल, मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और हुकूमती जमात के हलीफ जमात के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज से कुछ रोज़ पहले एक ट्वीट के ज़रिए अब कौम को इससे आगाह किया था। जो हमारी उनसे गुफ्तो शनीद होती रही, वो सारे मामलात वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेके गए और उन्होंने हमें ये कहा कि अभी जिन चीज़ों पे हमारा इत्तफाक़ राय है और हम वोट करने को तैयार हैं, आप वही जो सब्जेक्ट्स हैं वो लेके आएँ पार्लियामान में, ताकि हम सारे इत्तफाक़ राय के साथ ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं इन्हें अभी कर लें। वो मामलात जो हैं उन पे बाद की जो गुफ्तगू या बहस है वो उसको फ़िलहाल पेंड किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रहा है और मैं समझता हूँ कि आज जो मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो सियासी रवादारी है, सियासी हम आहंगी है और सियासी इस्तेहकाम है। मई के महीने में अल्लाह ताला ने मुमलकत के पाकिस्तान को जिस इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा, उस पे हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह उन अय्याम में पूरी कौम ने यकजान होकर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की और अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान के मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए भी इसी स्पिरिट की ज़रूरत है। हम ये बिल पेश करने के बाद अपोजिशन और जो हमारे हलीफ जमातें हैं उनके लिए ये ओपन फॉर डिस्कशन होगा। पार्लिमानी प्रैक्टिसेस का आपको इल्म है कि एक बहस होती है स्टैंडिंग कमेटी में जो कि ज़रा मुख्तसर लोगों पे मुश्तमिल होती है और फिर फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर भी ये डिबेट ओपन होगी। पार्लिमान 2/3 अक्सरियत के साथ जो बिल पास करेगी वो आइन का हिस्सा बनेगा। बहुत शुक्रिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा भी तैलीम कर रहे हैं सर, रखी जाएंगी और आप सबको मालूम है कि आइनी तरामीम जो हैं वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर होंगी तो आइन का हिस्सा बनेगी। एक बात की मैं फिर वजाहत भी करता चलूँ कि हमारी एक हलीफ जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 26वीं आइनी तरमीम के वक्त आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम के लिए वज़ीर आज़म से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से यानी हुकूमत से रब्ता किया था और उन्होंने एक बिल जो था वो इंट्रोड्यूस करवा रखा था सेनेट में, जो कि कमेटी के सुपुर्द था। और उस बिल पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत पे मैंने बतौर वज़ीर कानून उसकी सपोर्ट के हवाले से एक नोट भी वहाँ पे कमेटी में दिया था। वो बिल क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग है स्टैंडिंग कमेटी में, तो वज़ीर आज़म साहब की हदायत पे काबीना ने आज मुझे ये भी हदायत की है कि आज का ये बिल जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश होने के बाद कमेटी के सुपुर्द किया जाए तो उस बिल को भी कमेटी में बहस की जाए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि दीगर जो हमारे हलीफ जमातें हैं उनको कन्विंस करें कि इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो और इसे पास किया जाए। रिसेंटली पंजाब असम्बली से भी एक करारदाद है वो भी डिस्कस होगी। हमारी एक और हलीफ जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर सेनेटर मंजूर काकड़ साहब और उनके सदर वफाकी वज़ीर जनाब खालिद मक्सी साहब ने जब मुलाकात की वज़ीर आज़म से, तो उन्होंने एक और बिल की तरफ तवज्जो दिलाई जो कि बलूचिस्तान की सिर्फ सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफे के मुतल्लिक़ है, जिसमें वो कहते हैं